चलिए चैप्टर है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें पहला टर्म पढ़ाया गया था जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स, याद है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या होता था? इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज which passing through any given cross section area. It is the magnetic lines of forces. It is the magnetic lines of forces which passing through any given cross sectional area. It is defined as the dot product. It is defined as the dot product of two vectors. One is magnetic field and other is area vector. चलिए इसको डिनोट कैसे करते हैं? फाई से। फाई बराबर कितना? डी फाई का इंटीग्रेशन। डी फाई क्या है? छोटा सा फ्लक्स। डी फाई कैसे लिखते हैं? बी डॉट डी। इसी को इंटीग्रेट करते हैं। डी है मैग्नेटिक फील्ड, डी है स्मॉल एरिया। इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट है कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स। यहीं तक पढ़ाया गया था ना। आगे चलते हैं जो पढ़ते हैं जिसका नाम है फैराडे लॉ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं जिसका नाम है फैराडे लॉ। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू फैराडे
अकॉर्डिंग टू फैराडे, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है, लिंक कर रहा है, वो टाइम के साथ अगर वैरी करता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा तो उसमें एक क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। अकॉर्डिंग टू फैराडे, according to Faraday, if magnetic flux, according to Faraday, if magnetic flux which is linking, according to Faraday, if magnetic flux which is linking through any conducting loop, according to Faraday, if magnetic flux which is linking through any conducting loop is varying with time, is varying with time, is varying with time, then is varying with time, then an induced EMF, then an induced EMF is developed according to Faraday, if magnetic flux which is linking through any conducting loop is varying with time, then an induced EMF is developed in that conducting loop. In that conducting loop. In that conducting loop. And its value is equal to the negative of the time rate, and its value is equal to the negative of the time rate of change of that magnetic flux. According to Faraday, if magnetic flux which is linking through any conducting loop is varying with time, then an induced EMF is developed in that conducting loop, and its value is equal to the negative of time rate of change of magnetic flux. E induced बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। इनके द्वारा डायरेक्शन भी बतलाया गया। अगर ई इंड्यूस्ड बैक का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्लॉकवाइज।
अगर ई इंड्यूस्ड का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो लूप में करंट किधर, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए चेंज कर दें। if E induced is positive, then direction of current is in anti-clockwise. If E induced negative, then direction of current is in clockwise. If E induced is negative, then direction is clockwise. चलिए अब इसमें 2 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1, a coil of cross section area a coil of cross sectional area a coil of cross section area a having n turn is placed in a is placed in a is placed in a is placed in a uniform magnetic field uniform magnetic field B when it is rotated when it is rotated when it is rotated with an angular velocity with an angular velocity with an angular velocity omega the maximum EMF
the maximum EMF, the maximum EMF induced in the coil, induced in the coil is M N B A omega. B में 3/2 B A omega. C में 3 B A omega. 3 B A omega. D में 1/2 N B A omega. ऐड कर लीजिए अबाउट इट्स diameter when it is rotated with an angular velocity omega about its diameter. किसके अबाउट घुमाया जाता है? डायमीटर के अबाउट घुमाया जाता है. चलिए सोल्व करते हैं. देखिए क्या है. A coil of cross section area A having n turn is placed in uniform magnetic field when it is rotated with an angular velocity omega about its diameter. The maximum EMF induced in the coil is. चलिए देखिए सॉल्यूशन. ए है लूप, यही है. ये है डायमीटर, इसी के अबाउट घुमा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बाहर. एरिया किधर है? एरिया भी बाहर. एरिया भी अभी किधर है? बाहर. नहीं, जब इसको घुमाना शुरू करेगा, इसके लूप को क्या करेंगे? घुमाना शुरू करता. पहले ऐसे, अब धीरे धीरे ऐसे, ये घूमने जाएगा. नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसे है. एक को मान लीजिए बाहर है, नहीं ऐसे मान लीजिए. अब
पहले एरिया भी इधर है, लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाना शुरू करेगा, नहीं जैसे इसका लूप है, ऐसे लूप है, अब इसको घुमाना शुरू करेगा तो ये घूमना शुरू करेगा इस तरीके से। तो इसका एरिया भी किधर है, एरिया क्या होता है परपेंडिकुलर, जैसे जैसे घुमाएंगे एरिया भी घूमेगा, जैसे जैसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, एरिया चेंज करेगा, तो दोनों के बीच एंगल बदलना शुरू होगा। शुरू में 0 था, अब ये एंगल बदलना शुरू होगा, और ये है थीटा, और थीटा बराबर टाइम के साथ ऐसे। शुरू में 0 एंगल बन रहा है, थीटा बराबर कितना, ओमेगा टी, सुना है। अब देखिए कर लीजिए, फ्लक्स लिखिए, बी डॉट ए, बी एरिया एन कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, ये है बी ए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न आ गया, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दीजिए, क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, अब डिफ्रेंशिएट कर देता है, कितना आ गया, ये आ गया माइनस बी ए एन कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस साइन, फिर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, यही आ गया। तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया, बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। अब क्या वैल्यू पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन, यही हो गया आंसर। नहीं शुरू में क्या होगा 0 डिग्री, बाद में क्या होगा, बदलने लगेगा। नहीं एंगल तो बाद में बदलेगा टाइम के साथ, कैसे बदलेगा, थीटा बराबर, चलिए चेंज करें अब। तो ये था फैराडे लॉ,
अब आइए जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लेंज रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंज रूल। लेंज रूल क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने का एक तरीका है। लेंज रूल क्या है? डायरेक्शन निकालने का एक तरीका। ये बतलाया कि अगर किसी कंडक्टिंग लूप से, अकॉर्डिंग टू लेंज, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा डेवलप। उसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो फैराडे लॉ से निकालेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फैराडे लॉ से। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन निकालेंगे लेंज रूल से। और लेंज रूल क्या है? नहीं, तो लेंज रूल देखिए क्या है। अगर किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? जिस फैक्टर के कारण बदल रहा है। किसी कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जिस फैक्टर के कारण चेंज कर रहा है, ये डेवलप होकर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होकर उसी फैक्टर को अपोज करता है। अगर किसी कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये डेवलप होकर उसको घटाना चाहेगा, और अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा होगा तो ये डेवलप होकर उसको बढ़ाना चाहेगा। और ये बेस्ट होता है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे। इसको लिखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, अकॉर्डिंग टू लेंज रूल, if magnetic flux, if magnetic flux is varying according to Lenz rule, according to Lenz rule, if magnetic flux is varying, according to Lenz rule, if magnetic flux is varying through any conducting loop, varying through any conducting loop, according to Lenz rule, if magnetic flux is varying through any conducting loop, then induced EMF, then induced EMF is developed, then induced EMF is developed, then induced EMF is developed in that conducting loop. Then EMF is developed, then induced EMF is developed in that conducting loop. Its magnitude is calculated. Its magnitude is calculated. Its magnitude is calculated by Faraday law. And its direction is given by the Lenz rule. If
Lenz rule. The direction of induced EMF. चलिए लिखिए. The direction of induced EMF. चेंज करें. The direction of induced EMF is always. The direction of induced EMF is always opposite to the factor. The direction of induced EMF is always opposite to the factor which is responsible the direction of induced EMF is always opposite to the factor which is responsible to change of that magnetic flux. The direction of induced EMF is always opposite to the factor which is responsible to change of that magnetic flux. If magnetic flux is increased, then induced EMF is always try to decrease. If magnetic flux is increased, then induced EMF is always try to decrease to that increasing magnetic flux. If magnetic flux is increased, then induced EMF is always try to decrease to that increasing magnetic flux. It is based on the energy conservation. It is based on the energy conservation. It is based on the energy conservation. कौन बेस्ट है एनर्जी कंजर्वेशन पे? लेंज रूल. लेंज रूल क्या बताया गया? मैग्नेटिक फ्लक्स जिस फैक्टर के कारण चेंज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होकर उस फैक्टर को अपोज कर रहा है. अपोज क्या करता है? अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होकर उसको क्या करना चाहेगा? बढ़ने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाना चाहेगा.
और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ये घटने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। और ये बेस्ट है किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन पे। कौन? लेंज रूल। चलिए अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। चेंज करें? चलिए एप्लीकेशन देखें। एप्लीकेशन ए है करंट, ए है करंट, इसके बगल में है कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप। इसके बगल में क्या है? कंडक्टिंग लूप। अब आपको बतलाना है, इसी में डायरेक्शन बतलाना है, इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ induced, find the direction of induced EMF in the conducting loop. Find the direction of induced EMF in the conducting loop. If current in the conducting loop is A में increases, B में decreases and C में constant। चलिए लिखें। चलो देखो सॉल्यूशन। ए में क्या हो रहा था? करंट इंक्रीज कर रहा था। चलिए ये है करंट, इसी के बगल में है लूप, इसी के बगल में है लूप में कंडक्टिंग लूप।
इसी के बगल में है कंडक्टिंग। अब इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किधर, इससे जो करंट पास कर रहा है नहीं, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। देखो है अंदर, इसके कारण किधर, अंदर। अब देखो आई बढ़ रहा है तो बी क्या होगा, बढ़ेगा। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। एरिया क्या है इसका, फिक्स कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर के तरफ, अंदर की तरफ, और ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को क्या करना है, घटाना है। अंदर की तरफ है और ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को घटाना है। घटाने के लिए कितना डेवलप होगा, मान लिया 100 लाइन अंदर है, अगर 10 लाइन बाहर डेवलप होगा तो 100 में 10 घटाएगा ना, नहीं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो डेवलप होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा तो घटाएगा। अब बाहर हो मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए इसमें करंट किधर, इस तरीके से, तो इसमें हो गया डायरेक्शन। क्या है समझ में, ये है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। यहां लिखने जा रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, किधर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ फील्ड था, बढ़ रहा था, बढ़ने वाले को घटाना है, घटाने के लिए बाहर, बाहर के लिए हाथ किधर घूम रहा है, इधर। और ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहां तक आ रहा है समझ में कि नहीं आया, आया समझ में। बी और सी में लिखिए, बी में क्या था, सी में क्या था, नहीं ये, चलो लिख लो पहले, समझाते हैं। चलो देख लो क्या बतलाया गया, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर, ये स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाले को घटाना है, घटाने के लिए किधर डेवलप होगा, बाहर। बाहर के लिए हाथ किधर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो, इसके लिए इस लूप में करंट किधर, एंटी क्लॉकवाइज। चलो बी में करो या कर दें, करंट किधर है, इधर नहीं है ना। करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। चलो करंट क्या हो रहा था, घट रहा था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अब घट रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है, घटने वाले को क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए किधर, अंदर ही, अंदर के लिए हाथ किधर घूमेगा, इधर, यही ना, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ।
या इंड्यूस्ड करंट किधर, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। सी में क्या होगा, सी में करंट क्या था, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, करंट था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। फ्लक्स होता है ना, क्या होता है फार्मूला, बी डॉट, ये हो गया कांस्टेंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कर